हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल क्रैक ग्रेड बी में। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका ये एग्ज़ाम होने वाला है CSIR का। उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो इसी श्रृंखला में मैंने कई सारे टॉपिक जो लिए हैं, जिसमें आपको एप्लीकेशन बेस्ड और साइंस से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट हैं वो कॉन्सेप्ट आपके सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। तो वी आर स्टार्टिंग दिस सीरीज बाय टेकिंग subject from this acid and base and this salt and the light. These two are the very important topics. And when you will see in this chapter, we will discuss that what are the properties of the acid, base and salts, and what are the concepts related to the application of these acid, base and salts in our daily life. In chapter light, we will also see that what types of lenses we are using in our daily life and what are the properties of the lenses which we are using in our daily life. Right. So let's start with this chapter. This is the chapter 1, and under this chapter you can see acid, base and salts. What are their properties and what are the uses of these acid, base and salts in our daily life? As we know that the acids, the word this acid is derived from the Latin name that is acidus. What is the meaning of this acidus? It's mean the sour taste, and substance with the sour tastes are called acids. There was a Swedish chemist, Svante Arrhenius. They proposed a theory on acid and bases, and according to this theory, acid is a substance which furnish H plus ion or H3O plus ions in an aqueous solution. I will tell you that if any solution you will find like a aqueous solution, then in this aqueous solution, if any substance or any solution is forming this H plus ion, then simply you can say that this is the acid. What about the base? Base is a form. According to this Arrhenius theory, the bases are the substance that ionize the water to form hydroxyl ion, OH plus ion. Now we will see one by one that what are the properties of the acid, base and salts. Important properties of the acids are their taste are sour. Their aqueous solution conduct electricity since they contain ions. अगर आप इन बैकग्राउंड से हैं तो आप देखेंगे कि एसिड के अंदर जो है दे आर फॉर्म विद द हेल्प ऑफ द आयंस. दैट्स व्हाई they are the better conductor of the electricity. And this is a test which is related to the acids. The acid turns blue litmus paper into the red. Now questions comes that ये जो लिटमस पेपर होता है ये किससे बनता है? लिटमस पेपर किससे बनता है बताएं. तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप इसको कहीं से सर्च करें और बताएं. मतलब देखो, आपके पेपर के अंदर क्वेश्चन आ सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बट यहाँ पर आप देखें कि लिटमस पेपर किससे बनता है. इस तरह का क्वेश्चन भी मैंने कई बार देखा है कई सारे एग्जाम्स के अंदर जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आपकी कंडक्ट कराती है. एसिड रिएक्ट विद द एक्टिव मेटल टू गिव हाइड्रोजन गैस. मतलब किसी भी मेटल से दे विल रिएक्ट एंड दे विल फॉर्म द हाइड्रोजन गैस. It react with the metal carbonate and metal hydrogen carbonate to give carbon dioxide. Acid react with metallic oxide to give salts and water. And acid react with base to give salt and water. तो तीन चार चीजें आप याद रखना कि ये ब्लू लिटमस को इट converts blue litmus into the red. They when the acid react with the base, they give the salt water. Right.
These all are the things. But now, what is important for your exam point of view is very, very important for your exam point of view. Most important. Why? Because they are not going to ask you that acid and base are how they are reacting and what are their byproducts, but they will ask you that there is a apple, lemon, grape, tomato, vinegar, curd, orange, tea, stomach juice, and sting of ant bee. What types of acids are present in all these sources? So remember these points. It's a very important table. And just like apple is the in this apple, the acid present is malic acid. And I have seen a paper from previous year. I don't remember the exam, but they have asked, उन्होंने पूछा था कि जो सिंगल ऑफ आंट है, सॉरी स्टिंग ऑफ आंट है, या बी का जो स्टिंग होता है, जो डस्ती है, डंक डंक जिसको हम लोग बोलते हैं, वो किससे बनता है? इट इज फॉर्म विद द फॉर्मिक एसिड. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप इसको ध्यान रखना, इस टेबल को पढ़ के रखना. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट आर द यूजेस ऑफ द एसिड? द सल्फ्यूरिक एसिड इज कॉल्ड द किंग ऑफ द केमिकल, क्योंकि आप इस एसिड से सारी चीजें बना सकते हैं. बिकॉज इट इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ मैनी अदर कंपाउंड एंड इट इज यूज इन द कार बैटरीज. तो कार बैटरीज में भी यूज होता है और ये अलग कंपाउंड्स को भी बना सकता है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड is used as a cleansing agent in a toilet. Citric acid is very important in the preparation of effervescent salts and a food preservatives. Nitric acid is used for the manufacturing of fertilizers, dyes, paints and drugs. देखो आपको क्वेश्चन क्या मिलेगा, वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बना देगा. ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज हैं इसकी. इन प्रॉपर्टीज में से वो आपको बताएगा कि कौन सा एसिड इसमें से फूड प्रिजर्वेटिव में यूज होता है. ऑप्शन दे देगा सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सिट्रिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड. अगर पांच ऑप्शन है तो एक ऑप्शन और बढ़ा देगा, लाइक ऑक्जेलिक एसिड. तो आपको इसमें से बताना है कि कौन सा एसिड फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज होता है. तो सिट्रिक एसिड ही यूज है था फूड प्रिजर्वेटिव, तो इसलिए इनके एसिड्स के यूज को याद रखना बहुत जरूरी है. ऑक्जेलिक एसिड इट इज यूज to clean iron and manganese deposit from the quartz crystal, and it is also used to bleach for wood and removing black stain. Carbonic acid is used to create a drink, and this tartaric acid is constituent of the baking powder. These are the uses of the acids. एक और है एक्वा रेगिया. इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं किंग ऑफ द वाटर. Why? It can dissolve the noble metals such as the gold, platinum and palladium. Metals like gold and silver are not reactive with either HCl और HNO3. तो मतलब ये एक चीज अलग है, इसको याद कर लेना. बट मिक्सचर ऑफ दीज टू एसिड्स कैन डिजॉल्व गोल्ड. तो द मिक्सचर इज कॉल्ड द एक्वागेरिया. तो क्या मतलब हुआ? HCl और जो HNO3 है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कई पिछले एग्जाम्स में. इसका जो मिक्सचर होता है ना, ये क्या करता है? डिजॉल्व कर सकता है गोल्ड को. तो it is a mixture of hydrochloric acid and nitric acid and prepared optimally in a molar ratio. यानी कि 3:1, 3 HCl and 1 HNO3 के रेशियो से जो आपको फॉर्म होगा, that is called the aqua regia. It is a yellow orange fuming liquid and it is highly corrosive liquid able to attack gold and its other substance. तो इसके यूजेस क्या है? इट इज यूज चीपली टू डिजॉल्व मेटल सच एज द गोल्ड एंड प्लेटिनम एंड इट इज यूज फॉर क्लीनिंग एंड रिफाइनिंग गोल्ड. अब बात आती है बेसिस की. मैंने आपको बता दिया दैट आयनाइज एंड वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्सिल आयन, OH-1 आयन, वो क्या करता था? H+1 आयन को यूज करता था. राइट. अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? इनका जो टेस्ट होता है ना, बिटर होता है. वो खट्टे होते हैं, ये थोड़ा कड़वे होते हैं, बेसिस है ना. ये एक्वस, अगर ये एक्वस सॉल्यूशन में देखेंगे तो इनका जो टच आएगा वो सोपी टाइप का आएगा, स्लिपरी टाइप का. अगर हाथ से आप टच करोगे तो ऐसा लगेगा कि सोप जैसा है. ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं. लिटमस आपको बताना है, सर्च करना है कि कहाँ से ये लिटमस पेपर बनता है. देयर एक्वस सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी and bases react with the metal to form salt with the liberation of the hydrogen gas. ठीक है. बेसिस भी जो है मेटल और सॉल्ट के साथ हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करते हैं और नॉन मेट्रिक ऑक्साइड्स को प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर.
एंड दीज आर सिमिलर टू रिएक्शन बिटवीन अ बेस, राइट। तो एसिड की तरह इनका भी है। अब इनके यूजेस क्या क्या है? यूज ऑफ बेसिस, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सोप, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज यूज इन वाइट वॉशिंग ऑफ द बिल्डिंग, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज इन द मेडिसिन फॉर स्टमक इन डिसऑर्डर, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज यूज फॉर रिमूव ग्रीस स्टेन फ्रॉम द क्लॉथ। तो ये 4-5 यूजेस मैंने आपको बता दिए। आपको लगता है कि और ज़्यादा पढ़ना है तो आप देख सकते हैं। अदर मेरे हिसाब से आई हैव कवर मोस्ट ऑफ द थिंग्स इन दिस लेक्चर। अब एसिड और बेस की स्ट्रेंथ कैसे चेक करते हैं? देखो, इसकी जनरल प्रॉपर्टी है, एक पीएच स्केल होता है। पीएच स्केल में अगर मैं कहूँ कि 7 अगर मैं बेस मान लूँ, तो अगर कोई वैल्यू पीएच स्केल पर 7 आ रही है तो वो कोई भी सॉल्ट या प्रोडक्ट होगा, इट इज न्यूट्रल इन नेचर। But when you will go towards left side in this scale or towards right side in this scale, then you will move towards right side. You will get the solution alkaline. That it means its basicity will increase. अगर आप इधर घूमेंगे तो इस एसिडिक नेचर, इट्स एसिडिक कैरेक्टर विल इंक्रीज। कई सारे टेस्ट होते हैं और कैसे टेस्ट करते हैं देखिए। मतलब आपको पहचान करनी है कि एसिड और बेस में क्या अंतर है। तो एसिड कैन बी चेक बाय टेस्टिंग इट। देखिए, एसिड बहुत डेंजरस होते हैं तो हर एसिड को आप टेस्ट करके चेक नहीं कर सकते। तो एसिड्स that is if they are tested, you will find that it tastes are sour. If you will find that it is base, then the taste will be bitter. इनका pH लेस देन 7 होता है, इनका pH ग्रेटर देन 7 होता है। लिटमस को रेड करते हैं, लिटमस को ब्लू करते हैं, बेसिस और ये क्या है कि एक फिनिलोफेथिलीन को ये कलरलेस करते हैं। बट अगर बेस में ये फिनिलोफेथिलीन फेनोलोफेथिलीन को मिलाया जाए तो इनका जो कलर होगा वो पिंक हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज इज रेड एंड मिथाइल ऑरेंज इज येलो। ये इनके टेस्ट होते हैं। अब बात करते हैं सॉल्ट की। आपको देखा होगा कि डेली लाइफ में आपको सॉल्ट्स जो है आपके कहीं ना किसी फॉर्म में आपको मिल ही जाते हैं। तो जो सॉल्ट्स होते हैं ना, वो सॉल्ट कैसे फॉर्म होते हैं? एसिड और बेस को जब रिएक्ट किया जाता है तो उनका जो प्रोडक्ट होता है वो सॉल्ट और वाटर होता है। तो एसिड और बेस के रिएक्शन से यू कैन फाइंड सॉल्ट्स एनीवेयर। सॉल्ट्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है? सॉल्ट्स आर मोस्टली सॉलिड विच मेल्ट एज वेल एज बॉयल एट हायर टेम्परेचर। सॉल्युबल होते हैं वाटर में। फॉर एग्जाम्पल, क्लोराइड सॉल्ट्स ऑफ पोटेशियम एंड सोडियम आर soluble in water, but silver chloride is insoluble in water. ऑर्डरलेस होते हैं, कोई खुशबू नहीं होती, वाइट पाए जाते हैं, क्यूबिक क्रिस्टल और क्रिस्टलाइन पाउडर फॉर्म होते हैं। क्रिस्टल क्या होता है आपको पता होगा, क्रिस्टलाइन कैरेक्टर होता है किसी भी प्रोडक्ट का। तो एक क्रिस्टलाइन पाउडर फॉर्म में भी आपको मिल सकते हैं। और सोल्ट इज हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। ठीक। अब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? मैनी सॉल्ट्स आर फाउंड एज अ क्रिस्टल एंड वाटर मॉलिक्यूल्स। तो इसमें आप देख सकते हैं जैसे कुछ हाइड्रेटेड सॉल्ट्स होते हैं। सॉल्ट दैट कंटेन्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आर कॉल्ड हाइड्रेटेड सॉल्ट एंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हाइड्रेटेड टू सॉल्ट इज इंडिकेटेड आफ्टर अ डॉट इन अ केमिकल। जैसे कि ये वाला फॉर्मूला देखिए, ये क्या है? CuSO4.5H2O। तो इसमें इस डॉट के बाद जो 5H2O दिखाया गया है, इट शोज ये एक हाइड्रेटेड सॉल्ट है। इसके अंदर 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इज प्रेजेंट। ठीक है, तो ये एक सिंबल है, इससे आप चेक कर सकते हैं। एंड दिस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मेक द कॉपर सल्फेट ब्लू। मतलब कॉपर सल्फेट को अगर आप बाहर से देखेंगे और ये क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर जो उसके अंदर मिक्स किया गया है, ये इसको ब्लू कलर में कन्वर्ट करता है। And जब इसको हीट किया जाता है, इट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल्स एंड बिकम वाइट। एंड एनहाइड्रस सॉल्ट क्या होते हैं? सॉल्ट दैट डू नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, दे आर कॉल्ड एनहाइड्रस सॉल्ट। ये जनरली मतलब पाउडर फॉर्म में पाए जाते हैं। ये क्रिस्टलाइन और थोड़ा सा आप देखेंगे ना कि मतलब हल्का सा पानी मिला हुआ है, उस फॉर्म में पाए जाते हैं। अब कुछ यूजेस हैं सॉल्ट्स के, वो आप देख लीजिए। कॉमन सॉल्ट्स कौन कौन से होते हैं? NaCl, इट इज़ यूज्ड in our daily food such as the preservative, washing soda, सोडियम। याद रखना दोस्तों, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 को हम बोलते हैं वॉशिंग सोडा। और ये सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, और इन ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्री में इसको यूज़ किया जाता है। बेकिंग सोडा क्या होता है? जहाँ पर बाइकार्बोनेट लग गया, NaHCO3 हो गया। एंड इट इज़ यूज इन बेकिंग पाउडर विच इज़ मिक्सचर ऑफ अ बेकिंग सोडा एंड टार्टरिक एसिड। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि टार्टरिक एसिड का यूज़ कहाँ होता है। तो आ गया देखिए यहाँ पर, it is a tartaric acid is used in
ग्रेप, नहीं, दिस इज नॉट हेयर। टार्टरिक एसिड इज अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर को बनाने में टार्टरिक एसिड का यूज किया जाता है। इसके अलावा जो सॉल्ट्स होते हैं उनको सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी यूज करते हैं, इसको बेकिंग सोडा को। और बेकिंग पाउडर इज यूज टू मेक केक्स एंड ब्रेड सॉफ्टी एंड स्पॉन्गी। आपने देखा होगा कि केक जब बनाते हैं तो वो थोड़ा सा पफी टाइप का होता है, तो उसमें भी इसको यूज किया जाता है। एंड इट न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड इन द स्टमक एंड पाउडर फॉर्म रिलीव। अगर आपके पेट में एसिडिटी वगैरह होती है तो उस फॉर्म में भी आप सोडियम बाइकार्बोनेट, आपने देखा होगा कि आपके जो बड़े सीनियर लोग हैं या मम्मी पापा हैं या बहुत जो पुराने लोग हैं वो कहते हैं भैया बेकिंग सोडा को थोड़ा सा पानी मिला के पी ले, आपका पेट ठीक हो जाएगा। दिस इज बेकिंग सोडा इज यूज्ड एज अ न्यूट्रलाइजर टू एक्सेस एसिड इन अवर स्टमक एंड प्रोवाइड रिलीफ। ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड क्या होता है, इट इज़ यूज एज अ डिसइंफेक्टेंट। देखिए यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूँ, इसने ये 4 ऑप्शन दिए हैं, ठीक है। इन 4 ऑप्शंस में वो पूछेगा कि बेकिंग सोडा का यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, तो इसमें इसने फायर एक्सटिंग्विशर भी घुसा दिया। तो बेकिंग सोडा आपके दिमाग में होगा कि नहीं यार ये तो हमेशा खाने वाली चीज़ों के लिए होता है, लेकिन दोस्तों याद रखना इट इज़ ऑल्सो यूज एज द फायर एक्सटिंग्विशर। तो इस तरह के क्वेश्चंस में कंफ्यूजन मत रखना और इनको अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। नाउ प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसको हम बोलते हैं CSO4.1H2। ये क्या है, ये इसका फॉर्म दिखाता है कि ये हाइड्रेटेड है, हाइड्रेटेड फॉर्म में अवेलेबल है ये सॉल्ट। तो इट इज़ यूज फॉर द प्लास्टरिंग ऑफ द बोन, जब हड्डी हड्डी टूट जाती है वहाँ यूज़ होता है। और इट इज़ यूज फॉर मेकिंग कास्ट ऑफ स्टैचूज। आपने देखा होगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के कई जगह स्टैचूज भी बनते हैं। तो ये था, मतलब मुझे लगता है एसिड और बेस अगर आप इतना ही पढ़ लोगे तो इस पर कोई क्वेश्चन आएगा तो यू आर एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। अब आप देखते हैं कि लाइट क्या है। ये चैप्टर 2 है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रेवल एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। याद रखना कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है नेचर में। कभी क्वेश्चन आ जाए उसने पूछ लिया कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द लाइट वेव्स, तो सीधे आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए दीज आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव and the branch of physics that is called optics it deal with the light. There are two types of mirror in daily life you can use, that is the spherical mirror and plane mirror. अब क्या होता है कि कोई भी लाइट अगर वो किसी पॉलिश सरफेस पर मिरर के पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट होती है। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि अगर इंसिडेंस रे और रिफ्लेक्टिंग रे किसी भी एक पॉलिशिंग सरफेस पे पड़ रही है तो ये जो दो एंगल बनेंगे ना, दीज टू एंगल्स विल बी इक्वल। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द रिफ्लेक्शन क्या बोलता है, द इंसिडेंट रे दैट रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ये पहली बात तो एक प्लेन में होंगे, इस प्लेन में। उसके बाद ये दोनों एंगल जो है θ1 एंड θ2 विल बी इक्वल, ठीक है। θ1 एंड θ2 विल बी इक्वल। व्हाट आर द लेटरल इन्वर्जन? लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज placed in front of the plane mirror then the right side of the object appears to become to the left side of the image and the left side object appears to become the right side of the image. So this changes of the side of an object its mirror image called lateral inversion. देखिए अब क्या है कि यहाँ इसने राइट हैंड है लेकिन इसका राइट हैंड यहाँ ना दिख के ये राइट हैंड आपका इसका इधर दिख रहा है, यानी इसका लेफ्ट हैंड इधर दिख रहा है, राइट हैंड इधर दिख रहा है। दैट इज कॉल्ड लैटरल इन्वर्जन ऑफ द इमेज। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या होती है? रियल इमेज इज फाउंड बाय एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ द लाइट रेज वेयर द वर्चुअल इमेज इज फाउंड बाय द इमेजिनरी इंटरसेक्शन। तो रियल ऑब्जेक्ट क्या है कि यहाँ से अगर देखेंगे तो ये एक्चुअल इमेज फॉर्म कर रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये देख तो रहा है इस साइड में बट इसकी जो इमेज है ना वो इधर पीछे की तरफ फॉर्म हो रही है, एक्चुअल फॉर्म नहीं हो रही। तो दैट इज कॉल्ड द वर्चुअल इमेज। तो ये रियल ऑब्जेक्ट है और रियल ऑब्जेक्ट की जो इमेज फॉर्म हो रही है वो रियल इमेज फॉर्म हो रही है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल की वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रही है। अब बात करते हैं देयर आर द टाइप्स ऑफ द मिरर की। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कर्व मिरर such as the spherical mirror and the parabolic mirror. Most commonly used types of the curve mirror is spherical mirror. इनके क्या क्या यूज होते हैं, क्या क्या फायदे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिरर, कॉनकेव मिरर एंड द कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में क्या है कि
द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड्स, इनवर्ड्स की तरफ इनका जो है वो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है भाई, कोई भी रे जा रही है तो वो उससे रिफ्लेक्ट करेगी, दैट इज फेस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्फीयर, दे आर कॉल्ड द कॉनकेव मिरर। बट जिन मिरर्स का रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड्स होता है, बाहर की तरफ होता है, दे आर कॉल्ड द कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, जिनका अंदर की तरफ रहेगा दे आर कॉल्ड द कॉनकेव मिरर, और जिनका बाहर की तरफ रहेगा दे आर कॉल्ड द कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, मतलब मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे। अ, अगर ये है, मैं कहूँ इसका ये हिस्सा पॉलिश है और वो यहाँ से रिफ्लेक्ट कर रहा है रेस को, तो ये कहलाएंगे आपके कॉनकेव। ठीक है, लेकिन अगर वो उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर है, आउटवर्ड्स है, और वो ऐसे करके रिफ्लेक्ट कर रही है रेस पे, तो ये कहलाते हैं कॉन्वेक्स मिरर। अब इनके यूजेस क्या क्या है, देखो रिफ्लेक्शन तो आपको समझ में आ गया, लेकिन इनके रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो कैसे करके इमेज आपकी वो होती है, फॉर्म होती है। द रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द कर्वेचर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग इट्स पाथ। देखिए इसमें क्या होता है, एक फोकल पॉइंट होता है, एक इसका सेंटर होता है। अगर कोई भी रे उसके सेंटर से पास हो रही है तो वो उसी जो पाथ है ना, उसी को फॉलो करके वापस आ जाएगी रिफ्लेक्ट होके। लेकिन अगर कोई भी रे उसके प्रिंसिपल एक्सिस से पास हो, मतलब पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है इसका मतलब, ये अगर मैं कहूँ मिरर है तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है जो उसको बीच में से गुजर रहा है, तो इस पर कहीं एक सेंटर होगा, इस पर एक कहीं फोकल पॉइंट होगा। तो वो कह रहा है अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासिस थ्रू अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस। अगर वो ऐसे जा रही है तो वो फोकस से वापस होती हुई दिखेगी। दूसरी बात, अरे पासिंग थ्रू द फोकस गेट रिफ्लेक्टेड एंड ट्रेवल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। एक रे है जो फोकस से जाके वहां से रिफ्लेक्ट हो रही है, तो वो क्या होगी, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में जाके रिफ्लेक्ट होंगी। तो दीज आर द टू प्रिंसिपल। नाउ a ray incident at the pole of the mirror image get reflected along a path such that the angle of incidence is equal to the angle of reflection। जो मैंने आपको बताया रॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, वो कह रहा है कि अगर वो डायरेक्ट रे यहाँ जा रही है और तो ये जो दो एंगल फॉर्म करेंगे, मैं कहता हूँ ये एंगल θ1 है और ये एंगल θ2 है, तो दीज टू एंगल्स विल बी इक्वल, राइट। नाउ कुछ टर्म्स हैं इन स्फेरिकल मिरर से मतलब रिलेटेड। जैसे पोल होता है, द मिड पॉइंट ऑफ द सेंटर पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर, देखो ये है ना, ये जो पॉइंट होगा दैट इज कॉल्ड इट्स पोल। एपरेचर, एन एपरेचर ऑफ अ मिरर इज पॉइंट फ्रॉम विच द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट एक्चुअली टेक्स प्लेस और हैपन। इसने बताया ना एपरेचर क्या होता है मेरा, ये जो है ये एरिया है ना जहाँ से हमेशा आपकी मिरर को जो रिफ्लेक्शन होगा दैट इज कॉल्ड एपर्चर, एपरेचर, aperture. And the principal axis, an imaginary line that passes through an optical center from the center of the curvature of the spherical mirror. This is called the principal axis. Center of curvature, the point in the center of the mirror surface that passes through the curve of the mirror and has the same tangent and curvature. At that point, it is represented by the center C. देखो यहाँ देखो, सीधी बात, ज़्यादा नहीं समझना है, मैं आपको यहीं समझा देता हूँ सारी चीज़ें। ये आपकी हो गई रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहाँ से ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये इसका एपर्चर है, ये इसका पोल है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस है जो पोल को मतलब किसी भी स्फेरिकल मिरर को बीच में से डिवाइड करता है, वो इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। और ये बाहर वाला जो एरिया है ना, ये इसका हॉलो सरफेस है। ठीक है, तो ये सारे की सारी टर्म्स इसके अंदर रिलेटेड है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, इट इज कंसीडर्ड एज द लीनियर डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैंने आपको दिखा दिया। प्रिंसिपल फोकस कैन बी कॉल्ड द फोकल पॉइंट एंड इट प्रेजेंट ऑन द एक्सिस ऑफ द मिरर वेयर द रेज ऑफ द लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जो मैंने आपको रूल में बताया कि अगर इस फोकल पॉइंट से कोई भी रे गुजर जाएगी तो इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। फोकस, इट इज एन गिवन पॉइंट ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस where the lights are parallel to the principal axis and will appear to be converge after getting reflected. Now इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, कुछ कॉन्केव मिरर्स की प्रॉपर्टीज आप देखो। लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन converge at a point when it strike and reflected back from the reflective surface to the concave mirror. तो इसको हम लोग इसलिए कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। Converging mirror is placed very near to the object. Why? Because a magnified and virtual image is observed. But if we tend to increase the distance, अगर मैं concave mirror को दूर ले जाने की कोशिश करूंगा, then the image size reduce and the real image is formed. The image formed by the concave mirror we can say that
small and enlarge and can be either real or virtual. तो ये इसके फॉर्म्स हैं. अब इसके कॉनकेव मिरर्स को हम लोग देखो यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी मैंने आपको कॉनकेव मिरर की बता दी है, तो वो आप यहाँ से देख लेना, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसके यूजेस बड़े इंपॉर्टेंट है. यूज़ ऑफ कॉनकेव मिरर कहाँ कहाँ होता है? जो हम लोग शेविंग मिरर होता है, इसको हम कन्वर्जिंग मिरर भी कह सकते हैं, वाइडली यूज इन शेविंग बिकॉज दे हैव रिफ्लेक्टेड and curve surface. So at the time of the shaving, the concave mirror forms a enlarged as well as the erected image of the face when the concave mirror is held closer to the face. तो shaving बनाने के लिए जो mirror use होता है, that is called concave mirror. Concave mirror can be used by the ophthalmoscope. The mirror used in the optical instrument that is called ophthalmoscopes for treatment. Concave mirror are also used by the astronomical telescope. The concave mirror can also be used in the headlights of the vehicles and it can also be used in the solar furnaces. तो ये इसके वो है एप्लीकेशंस है. याद रखना ये क्वेश्चंस आपको दे सकता है कि कौन सा मिरर आपका यूज़ होता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप्स में. ठीक है, तो इसके बाद देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर. Convex mirror is also known as a diverging mirror. Why? Because diverging mirror as the mirror divert light when they strike in the reflecting surfaces. इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश इमेज को फॉर्म करता है. और कॉन्वेक्स मिरर रिस्पेक्टिव ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड मिरर, आप डिस्टेंस को कम या ज़्यादा करो, ये हमेशा ये वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश इमेजेस को फॉर्म करेगा. इसके यूजेस देख लेते हैं. Convex mirror are used inside the building, large offices, store, hospitals. Convex mirror let people see around the corner so that they can avoid running into each other and prevent any collision. मतलब बिल्डिंग के अंदर कहीं देखेंगे तो ये कॉन्वेक्स मिरर को यूज़ करते हैं. Convex mirror are used in the vehicles. Convex mirror are used as a rear view mirror in the case of an automobile vehicle because they can divert the light beam of the making virtual images. अब पीछे से देखते हैं लाइट आ रही है तो जो रियल व्यू मिरर आपकी गाड़ी के सेंटर में लगा रहता है, ये वहाँ पे यूज़ होता है. यूज़ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इन मैग्नीफाइंग ग्लासेस. मैग्नीफाइंग ग्लासेस में क्योंकि क्या करता है कि सारी सारी रेस को एक जगह आके रखता है. तो दीज मिरर्स आर मोस्टली यूज इन फॉर मेकिंग मैग्नीफाइंग ग्लासेस. कॉन्वेक्स मिरर यूज फॉर सिक्योरिटी पर्पस. डाइवर्जिंग मिरर आर ऑल्सो यूज फॉर सिक्योरिटी पर्पस इन मैनी प्लेसेस, जैसे कि ATMs हो गया. कैन चेक इफ समवन इज बिहाइंड देम, मतलब वहाँ देखा है तो वो मतलब पीछे आपकी इमेज बनाएगा तो आपको लग रहा है कि आपके पीछे ATM में कोई है, तो ये उस फॉर्म में भी इसको यूज़ कर सकते हैं. कॉन्वेक्स मिरर आर ऑल्सो यूज इन वेरियस अदर प्लेसेस लाइक स्ट्रीट लाइट रिफ्लेक्टर एंड दे कैन स्प्रेड लाइट ओवर बिगर एरियाज. अब रिफ्लेक्शन क्या होता है देखेंगे कि अगर कोई भी लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन. When the ray of light travels from a optically rare medium to optically denser medium. Rare और denser medium क्या होता है? मान लिया कि पानी से आप ऊपर खड़े हैं तो एयर से आप पानी के अंदर देख रहे हैं तो पानी आपका क्या हो जाएगा? थोड़ा सा डेंसर मीडियम हो जाएगा. तो ये आपका जो बाहर से आप जो देख रहे हैं वो कहलाएगा रेयर मीडियम. तो अगर कोई भी रे ट्रेवल करती है रेयर मीडियम टू ऑप्टिकली डेंसर मीडियम तो वो टूवर्ड्स जो नॉर्मल है ना उसकी तरफ थोड़ी सी बैंड हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए, मैंने आपको बताया ना ये ऊपर वाला मीडियम एयर है और नीचे वाला मीडियम वाटर है. और मैं इसको अगर नॉर्मल कह रहा हूँ तो यहाँ से अगर कोई रे जा रही है वो थोड़ी सी ये नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाती है. When a ray of light travels from an optically denser medium to an optically rare medium, it bends away from the नॉर्मल. अगर मैं कहूँ कि कोई रे वाटर से बाहर की तरफ आ रही है वो नॉर्मल से ना थोड़ी सी दूर की तरफ चली जाएगी इस नॉर्मल से. तो ये एक रिफ्रैक्शन के सिद्धांत है. लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को बताया था, हम ज़्यादा डिफाइन कर सकते हैं स्नेल लॉ से. स्नेल लॉ क्या बोलता है? इंसिडेंस रे द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेरेंस ऑफ द टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन. जैसे कि आपका जो प्लेन मिरर में मैंने आपको बताया था चीज़ें वो भी यही है कि अगर इंसिडेंस रे और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल जो तीन चीज़ है यहाँ पर आप देखिए, ये तीनों पहली बात तो एक प्लेन में रहेंगे. उसके बाद जो ये बोल रहा है द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ द रिफ्लेक्शन इज कांस्टेंट फॉर अ लाइट ऑफ अ गिवन कलर एंड फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया. अगर जो एंगल मैं कहूँ कि एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है और एंगल ऑफ इंसिडेंस आर है
तो इन दोनों का जो रेशियो होगा ना, ये ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा एज पर द स्नेल्स लॉ। अब इसके कुछ एप्लीकेशन देखते हैं। देखो, एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। ये क्या कहता है कि कंप्लीट रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट रे एट द बाउंड्री ऑफ द टू मीडिया व्हेन द बीम इज इन मीडियम विद हायर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज नोन एज द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मैं एक बात कहता हूँ, अगर कोई रे जो ट्रेवल कर रही है डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, वो क्या है, वो रिफ्लेक्ट होगी किससे, अपने नॉर्मल से। तो उसमें एक एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा जो मैंने आपको बताया इन द डेंसर मीडियम। अगर वो इंक्रीज करता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से, then angle of reflection also increase and it reaches a maximum value of 90 degree for a particular value। तो ये अगर 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल ऑफ क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम इंक्रीज, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑल्सो इंक्रीज। वो कह रहा है कि अगर डेंसर मीडियम का एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज होगा तो वो भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया दोनों का रेशियो जो है वो कांस्टेंट है। तो वो ये कह रहा है कि अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इंक्रीज मान लिया कि 90 डिग्री पर है, और अगर वो इससे भी ज़्यादा जाता है, तो दैट इज, पहली बात तो ये जो एंगल है, ये जो वैल्यू है 90, इट इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। अगर कोई भी एंगल ऑफ इंसिडेंट एट विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन is getting 90 degree is called the critical angle. At this angle, the refracted ray grazes and the surface of separation between the two media. कहने का मतलब यह है कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जैसे जैसे बढ़ेगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बढ़ेगा, लेकिन अगर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा आती है तो उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। इसके लिए इसने क्या बताया कि when the light beams go from a more optically dense material to the less optically dense medium, this phenomena is happen। ठीक है, there are the two situations in which total internal reflection happens। First, the light is approaching the less dense medium, मतलब denser medium से rare denser medium में जा रही है, और उसका जो इंसिडेंस एंगल इज लार्जर देन द क्रिटिकल एंगल। तो इन केस में आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। देखो, इसके कुछ एग्जाम्पल है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के। ये क्या है, मिराज। आपने देखा होगा कि हॉट समर में आपको द पैचेस ऑफ द वाटर में ऑन द रोड, दिस इज एन इल्यूजन। एक्चुअल में वो होता नहीं है, लेकिन वो क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ऐसा वो होता है। क्या होता है एग्जैक्टली, इन द समर द एरिया नियर द ग्राउंड बिकम द हॉटर देन द एयर एट द हायर लेवल। ग्राउंड पर क्या है, ये जो एरिया है ना, ये ज़्यादा हॉटर हो जाएगा एज कम्पेयर टू से थोड़ा से ऊपर में ये थोड़ा सा कम हॉटर होगा, लेस हॉटर। तो इस केस में आप देखेंगे हॉटर एयर इज लेस डेंस एंड हैज अ स्मॉल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देन द कूलर एयर, जो उससे ऊपर है थोड़ी सी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। Thus, a ray of light bends from the normal and undergo the total internal reflection. So, this total internal reflection is the main cause for the spectacular brilliance and diamonds and twinkling of the star. तो इंटरनल रिफ्लेक्शन का आपको एक तो मिराज बता दिया मैंने। इसके बाद एक ऑप्टिकल फाइबर होती है जो आजकल यूज़ कर रहे हैं इंटरनेट वगैरह पे, वो भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर काम करती है। तो इसके अलावा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहाँ कहाँ हो सकता है, वो आपका डायमंड में हो सकता है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स में जो होता है वो भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का ही पार्ट है। मिराज मैंने बता दिया। ऑप्टिकल फाइबर में आप यहाँ देखेंगे, ऑप्टिकल फाइबर आज की डेट में क्या है ना, इसने रिवॉल्यूशन ला दिया है इंटरनेट के अंदर। ऑप्टिकल फाइबर क्या है, एक बंडल ऑफ हाई क्वालिटी कंपोजिट ग्लास क्वार्ट फाइबर है, और ये ईच फाइबर कंसिस्ट ऑफ अ कोर एंड क्लैडिंग। यहाँ देख लीजिए, outer cladding with a lower refractive index and the protected outer sheath of optical fiber, inner core with a higher refractive index। ठीक है, तो अंदर से जो रेज जा रही है हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि डेंसर मीडियम से लोअर मीडियम के अंदर जा रही है, तो क्या होगा, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द कोर इज हायर देन दैट ऑफ द क्लैडिंग, यानी कि बाहर वाले से कोर का जो मटेरियल है वो ज़्यादा मतलब हायर उसका है। तो दिस ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन द फिनोमेना ऑफ द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। And these optical fibers are extremely used for transmitting the audio and video signals through a long distance. And they can also be used. Flexible nature of optical fibers enable physicians to look into the work side of the body through a tiny incision without having a performance surgery। तो ये मेडिकल में भी यूज होता है कि भाई इसको आप अंदर कहीं देखना है
किसी बॉडी के अंदर विदाउट एनी सर्जरी, आप इसको इजीली देख सकते हैं। ठीक है, तो ये था। इसके बाद हम लोग हीट पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। तो फ्रेंड्स, अगले चैप्टर में मैं आपको समझाऊंगा हीट के बारे में, और हम लोग सारे सारे कॉन्सेप्ट साइंस के खत्म करेंगे। तो टिल देन, थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए।